Will Gujarat Chief Minister Narendra Modi's role be probed in the 2002 Gulbarg Society case? That's the key decision the Supreme Court takes tomorrow. 69 people were killed here in the post-Godhra riots, including Congress MP Ehsan Jafri. And his wife, in fact, has been spearheading the fight for justice. She's alleged the Chief Minister, his key ministers and top police officials connived to make security forces virtually inactive and thereby aided the worst violence. It's been almost a decade of waiting for Zakia Jafri, hoping to get justice for her husband. Former Congress MP Ehsan Jafri was killed with 69 others by a rioting mob which attacked the Gulbarg Society on the 28th of February 2002, soon after the Godhra train burning. Shattered but resolute, Zakia led the quest for justice for hundreds of riot victims. She is not only a witness in the Gulbarg massacre case, but had petitioned the Supreme Court pressing charges against Chief Minister Narendra Modi, his ministers and policemen. मेरी नींद खुल जाती है तो मैं फिर सो भी नहीं पाती, वहीं पहुंच जाती हूँ मैं जहाँ मेरे को होना चाहिए. इसलिए मुझे तो ये बात है, उम्मीद में हिम्मत नहीं आ रही हूँ. Despite the prolonged legal battle, Zakia didn't give up her fight. नहीं, उसके लिए तो मुझे डर नहीं लगा कि ऊपर जो है तो अल्लाह है, बहुत बड़ा है. और जब उन सामने वालों को डर नहीं लगा कि उसने इतना बड़ा आदमी के लिए इस तरह टुकड़े टुकड़े करवा के उसको खत्म कर दिया, और उसने ये नहीं सोचा, ना खुदा का खौफ किया, ना लोगों का खौफ किया, ना अपनी जो पोस्ट थी उसका खौफ किया, तो फिर मेरे को क्या खौफ है? मेरी एक जान है, जब इतने लोग जहाँ मर गए, मैं भी मर जाऊंगी. मेरे को उसका जरा भी आपको नहीं है. After her long ordeal, Zakia now hopes the verdict will bring closure. NDTV Bureau Report. Well, Zakia Jafri's petition says there's overwhelming evidence of the direct involvement of the Gujarat government led by Chief Minister Narendra Modi in that violence. She alleges the Chief Minister told officials at a crucial law and order meeting to go slow on rioters. That was on the 27th of February. She also says he positioned senior ministers and party functionaries at selected police control rooms to monitor riots and ensure police inaction, and goes on to say phone calls were made from the Chief Minister's office to police officials and riot accused, all charges that have been vehemently denied all along by the Modi government. In fact, joining us now live from Surat in Gujarat is Zakia Jafri. Zakia ji, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया. There's सिर्फ कुछ ही घंटे अब बच गए हैं कि हमको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है. आपको कैसा लग रहा है? Are you nervous? Are you tense? Optimistic? मैं नर्वस तो नहीं हो रही हूँ. ऐसा लग रहा है मेरे को कि आज तो, क्योंकि पहले 27 तारीख को जो थी मेरी तारीख, फिर वो बदल गई थी, और अब आज जो एकदम से मालूम पड़ा कि कल वहाँ पर दिल्ली जाने का है, तो मेरे को नर्वस से में जरा थोड़ी मेरे को खुशी हुई कि नहीं, अब ज़रूर कुछ मेरे को इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से. तो मैं इसके लिए खुशी हूँ और अभी दुआएं कर रही हूँ खुदा से कि मेरे हक में ही फैसला ठीक हो. जी, इतने साल हो गए जाकिया जी, आपने बार बार कहा है कि ये एक लड़ाई है कि आप जो इसको जब तक आपको नतीजा नहीं मिल जाएगा अपने हक में, आप ये लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे. बहुत लोग थे वो वहाँ पर, बहुत लोग जो थे, जो मेरे सामने नजरों के सामने ही सबको ख़त्म किया गया. 4,000 लोग को बिल्कुल बेतरकी से उन्होंने बहुत बुरी तरह से उनको कत्ल किया मेरे सामने, मेरे घर के अंदर और बाहर सब लाशें ही पड़ी हुई थी, और ये मैं देख रही थी ऊपर से. और जाफरी साहब के साथ में भी जो हुआ, उन्होंने एक पार्लियामेंट मेंबर की जो इस तरह से कंडीशन करी कि उनको सब कपड़े उतार के चौराहे के ऊपर सब उनको नंगा कर और उनके टुकड़े टुकड़े बदन के कर दिए, उनकी गर्दन का तलवार से काट कर अलग फेंक दी. कि मैं यानी जिस तरह एक बहुत बड़े आदमी की लाश जाती है बड़े सब लोगों के साथ के अंदर, उनको कफन दफन के अंदर भी इतनी तकलीफ हुई कि मेरा बच्चा, उनको एक थोड़े से कपड़े में ले जाकर उनकी बट्टी जो थी वहाँ की, और उसको जाके दफन किया. इसका भी मैं उसके लिए बहुत नर्वस हूँ. जी, हम सोच सकते हैं कि जब भी वो मोमेंट्स याद आते होंगे आपके लिए कितना मुश्किल वक्त होता होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि कल जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसके बाद आप अपनी जिंदगी यहां से आगे जी पाएंगे? डू यू बिलीव दैट देयर विल बी एनी क्लोजर? जी हाँ, बहुत मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा महत्व है कि मैंने इतनी हिम्मत करके और जद्दोजहद करके, और मैंने ये लड़ाई करी, इतनी हिम्मत करी कि जहाँ भी मुझे ले गए
तो मैं जाने को तैयार हो गई, मतलब। और हालांकि मेरे पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं थी इतनी जदों। सब लोग भी मुझे कहते हैं कि आफरी है कि तुमने इस बुढ़ापे के अंदर तुमने इतनी हिम्मत रख के और ये केस को लड़ा, मतलब। और मैं जब ये मेरे को कल ये मालूम पड़ेगा कि मेरे हक में फैसला हुआ है, तो मेरे लिए इस दुनिया में और कोई, मैं समझूंगी कि मैंने जाफरी साहब के लिए अपना सब कुछ विधा निछावर कर दिया। जी बहुत मुश्किल वक्त जाकिया जी, इसके बीच में हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि इतने सालों में बहुत लोग हैं जिन्होंने शायद सोचा होगा कि अब वो और नहीं लड़ सकते, क्या ये ख्याल आपके दिमाग में भी कभी आया? मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरे हक में ही फैसला करेगी, मतलब कि नहीं कम सुप्रीम कोर्ट जो है तो जरूर उसको परवरदिगार के यहाँ जो है, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जी जाकिया जी, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। टुमारो ऑफ कोर्स बीइंग अ वेरी क्रूशियल डे देयर इन द कोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरे लिए इतना टाइम निकाला और मेरे से बात करी जी, और आप दुआ कीजिएगा कि मेरे हक में फैसला हो। जाकिया जी, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. NDTV.com/apps.